Hello students, how are you? Today I am taking your math subject part 1, block 8, Introduction to Money. In this topic we identify different coins and notes and count money. Add different notes and coins to make an amount. Students, क्या आप बता सकते हैं? What is this? These all are coins. This is 1 rupee coin, this is 2 rupees coin, this is 5 rupees coin and this is 10 rupees coin. आप जब कुछ शॉपिंग करने जाते हो तो क्या करते हो? आपको आपकी मम्मी नोट्स नहीं देती है ज़्यादा बड़े, तो आपको क्या देती है? चॉकलेट वगैरह लाने के लिए कॉइन्स देती है. आप इससे क्या करते हो? थिंग्स बाय करते हो. नाउ वी विल सी notes. This is 10 rupees note, this is 50 rupees note, this is 100 rupees note and this is 500 rupees note. What is the value of these note and coins? बच्चों, क्या आप बता सकते हो इन नोटों और सिक्कों की कीमत क्या है? आज हम अलग अलग सिक्के और नोटों के बारे में जानेंगे. Today we will learn about Indian currency. Use note and coins. Note and coins. We use money to pay for things that we want to buy. Money comes in notes and coins. The symbol for rupees is like this. We can use skip counting to count the total money. हम चीज़ें खरीदने के लिए क्या करते हैं? नोट्स और कॉइन्स यूज़ करते हैं. और मनी कैसे आती है? मनी किसको बोलते हैं हम? नोट्स और कॉइन्स को. और रुपीज़ का सिंबल कौन सा है? दिस इज रुपीज़ सिंबल. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 3 rupees 2 coins. Sorry, if we have 2 coins, we can count the total money as 2, 4, 6 and say rupees 6 in all. अगर हमारे पास 2 rupees के 3 coins हैं तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे? 2, 4 and 6 means 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. हम पैसे यानी कि नोट्स और कॉइन्स किस लिए यूज़ करते हैं? कुछ चीज़ें खरीदने के लिए. मनी मीन्स नोट्स एंड कॉइन्स मीन्स जो चिल्लर आती है उसे क्या बोलते हैं? कॉइन्स. दिस इज सिंबल ऑफ रुपीज़. सी दिस फिगर. इन दिस फिगर there are coins and notes. This is 50 rupees coin, 1 rupees coin, 2 rupees coin, 5 rupees note, 10 rupees note, 10 rupees coin, 5 rupees coin, 10 rupees coin, 20 rupees note and 50 rupees note, and this is 100 rupees note. ये क्या है? नोट्स और कॉइन्स. आप आपके मम्मी के पास जो नोट्स और कॉइन्स है उसे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नोट कौन सा है. मम्मी को पूछना है आपको कि ये नोट कौन सा है, कॉइन्स कौन से हैं, और फिर उसका टोटल करके फिर अमाउंट क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो आपको 5 रुपीज़ की अगर कुछ चीज़ें लेनी है तो आप क्या पैसे कैसे दोगे? 5 रुपीज़ की नोट दोगे या फिर कॉइन दोगे या फिर 2 रुपीज़ का कॉइन दोगे? यस, हम 5 रुपीज़ की नोट नहीं तो 5 रुपीज़ की कॉइन दोगे. और 2 रुपीज़ हम क्या करेंगे? हमारे पास रखेंगे क्योंकि उसकी प्राइस क्या होती है? 5 रुपीज़. नाउ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन. इन योर ग्रुप काउंट द 2 groups of money that you have. Write the total for each. सी, ये कॉइन्स देख रहे हैं आप? कौन से कॉइन है ये?
5 rupees coin and this is 5 rupees coins. Means 5 plus 5 plus 5 is equal to 10 rupees. So you have to write here 10 rupees. And see, in second, there are 10 rupees coins. Means 10 plus 10 is equal to 20 rupees. 10 और 10 की कॉइन्स मिला के आपके पास जो अमाउंट है वो कितनी हो गई? 20 रुपीज़. Question number 2. Identify these notes. This is 10 rupees note and this is 100 rupees note and this is 20 rupees note. Understand? You also write answer in your textbook. Now we will turn on next page, making an amount. Today we will add different notes and coins to make an amount. आज हम कुछ रकम निकालने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों को जोड़ेंगे. We can use different notes and coins to make an amount. Two different sets of notes and coins can have the same value. There can be different ways to show an amount. For example, rupees 10 can be shown in the following different ways. How can we make an amount without skip counting? We can add the different amount to make the given amount. बिना स्किप काउंटिंग के हम एक धनराशि कैसे निकालते हैं? दी गई रकम बनाने के लिए हम अलग अलग रकमों को जोड़ सकते हैं. सी दिस नोट्स. दिस इज़ 10 रुपीज़ नोट. अगर हमें 10 रुपीज़ बताना है तो हम किस तरह के कॉइन्स और नोट्स यूज़ कर सकते हैं ये यहाँ पे बताया है. अगर आपको 10 रुपीज़ देने हैं तो हम 10 रुपीज़ की नोट शॉपकीपर को दे सकते हैं. 5 प्लस 5 मीन्स 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दिए तो आपकी अमाउंट क्या होगी? 10 रुपीज़. वन मोर 2 रुपीज़ के हम कितने कॉइन्स देंगे तो उसको 10 रुपीज़ हम दे सकते हैं. 1 2 3 4 5 मीन्स 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स दिए तो हम शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दे सकते हैं? 10 रुपीज़. ऐसे ही हम हमारे मम्मी से कुछ रुपीज़ लेने हैं आपको आपके मम्मी के साथ और आपको अलग अलग अमाउंट उसको ट्राई करके देखना है कि हम अगर 20 रुपीज़ देने हैं या फिर 15 रुपीज़ देने हैं तो हम कैसे दे सकते हैं. 10 रुपीज़ की 1 नोट और 5 रुपीज़ का 1 कॉइन दिए तो कितने होते हैं? 15 रुपीज़. तो आपको नोट्स और कॉइन्स में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा. और अगर आप शॉप में गए तो आपको कुछ थिंग्स लेने हैं, बाय करने हैं तो क्या करोगे आप? वहाँ पे जंबल नहीं हो जाओगे और अच्छे से आपको अमाउंट देनी आ जाएगी. इसलिए आपको नोट्स और कॉइन्स पहले आइडेंटिफाई करने पूरे. उसके बाद आप क्या कर सकते हो? कुछ भी थिंग्स बाय कर सकते हो. अंडरस्टैंड? टुडे वी विल मेक डिफरेंट अमाउंट टू बाय आइटम्स. आज हम सामान खरीदने के लिए अलग अलग रकम बनाएंगे. वी हैव टू पे मनी बाय थिंग्स. Different notes and coins add up to the price of what we want to buy. Students, आप जब मार्केट में जाते हैं तो शॉप में से कुछ खरीदने के लिए आप क्या देते हो या फिर आपकी मम्मी दुकानदार को क्या देती है? पैसे, यानी कि मनी. मतलब कि कोई भी वस्तु के बदले में हमें मनी देनी पड़ती है. See in this picture, an ice cream cost rupees 15. This is rupees coin. And what is the price of ice cream? 15 rupees. What coins and notes will you use to pay for it? This is ice cream. इसकी कॉस्ट क्या है? 15 रुपीज़. तो 15 रुपीज़ आप अलग अलग तरह से कैसे दोगे?
सी इन दिस पिक्चर 10 प्लस 5 रुपीज़ की नोट, मतलब 10 और 5 15। नेक्स्ट 15 रुपीज़ के लिए हम 5 रुपीज़ के 3 कॉइन्स भी दे सकते, तो आपकी अमाउंट क्या होगी 15 रुपीज़। अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है, नोट नहीं है, 3 कॉइन्स नहीं है, तो आप कैसे दे सकते हो 10 रुपीज़ का 1 कॉइन और 5 रुपीज़ की 1 कॉइन, तो आपकी अमाउंट क्या होगी 15 रुपीज़। मीन्स मम्मी भी आपके, आप देखते हैं ना मम्मी के साथ जाते हो तो कि मम्मी भी अलग अलग नोट्स और कॉइन्स देती है शॉपिंग करते हुए, और आपको भी ऐसे ही क्या करना है, सीखना है मम्मी के साथ कि कितने रुपीज़ देने के लिए वो कितने पैसे देती है, और कुछ पैसे ज़्यादा दिए तो वो कितने पैसे हमें रिटर्न आते, वो भी आपको उसमें देखना है, और दुकानदार को करेक्ट अमाउंट देनी है। ओके, नाउ वी विल टर्न ऑन नेक्स्ट पेज, word problems. Today we will solve word problems involving money up to 20 rupees. आज हम 20 रुपए तक की रकम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे। We give money to the shopkeeper when we buy things. जब हम कुछ चीज़ें लेते हैं तो शॉपकीपर को हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं। वी कैन पे द शॉपकीपर अ हायर अमाउंट इफ वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट अमाउंट। द शॉपकीपर विल गिव अस बैक द एक्स्ट्रा अमाउंट वी पेड एज चेंज। हम कोई चीज़ खरीदने के लिए शॉपकीपर यानी कि दुकानदार को पैसे देते हैं। जब हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है तो हम शॉपकीपर को ज़्यादा पैसे देते हैं, और फिर उनके पास से क्या करते हैं, बाकी के चेंज यानी कि पैसे लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। अगर आपको किसी रुपीज़ के में से किसी को पैसे देने, समझो 100 रुपीज़ है और उसमें से आपको 50 रुपीज़ देने, तो आप किसी को क्या बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी चेंज, यानी कि मुझे चेंज दो, 50 रुपीज़ के नोट्स दो, नहीं तो वो क्या करता है 10 रुपीज़ के 10 नोट्स देता है, नहीं तो 50 रुपीज़ के देता है, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज, यानी कि उससे हम एक नोट की चिल्लर भी कर सकते हैं। दुकानदार भी कैसे करता है कि हम अगर 30 रुपीज़ की अगर किसी की थिंग्स की प्राइस हो तो हम 100 रुपीज़ हो या फिर 50 रुपीज़ है तो उसको देते हैं, और वो क्या करता है कि उसमें से एग्जैक्ट अमाउंट निकालता है वो थिंग की, और बाकी के पैसे हमें रिटर्न करता है, इसे बोलते हैं चेंज देता है वो। हाउ डिड यू फाइंड द चेंज? वी फाउंड द चेंज बाय subtracting the amount to be paid from amount we paid। मीन्स हम दी जाने वाली रकम और दी गई रकम के बीच अंतर निकालकर बचे हुए पैसों का पता लगाते हैं। नाउ सी इन दिस फिगर, कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, 12 रुपीज़, मनी पेड रुपीज़ 20, चेंज अमाउंट, अगर इस बॉल की प्राइस क्या है 12 रुपीज़, अगर हम दुकानदार को 20 रुपीज़ देंगे तो उसकी चेंज कैसे होगी, वो उसमें से 12 रुपीज़ माइनस कर देगा 20 रुपीज़ में से, और बाकी की जो चेंज है वो हमें रिटर्न करने वाला है। मतलब हमें अभी कितने रुपीज़ आएंगे, 20 माइनस 12 हो गए तो 8 रुपीज़ उसमें से चेंज हमें मिल सकती है। तो वो 8 रुपीज़ हमें कैसे देगा, 20 रुपीज़ की नोट देगा, नो, 10 रुपीज़ की नोट देगा, नो, तो वो हमें 5 रुपीज़ की 1 नोट, 2 रुपीज़ का 1 कॉइन और 1 रुपीज़ की 1 नोट हमें रिटर्न करेगा। इसे क्या बोलते हैं, चेंज, यानी कि वो हमें एग्जैक्ट अमाउंट निकाल के बाकी के पैसे रिटर्न कर देता है। अंडरस्टैंड?